नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी देशकारिणी। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी देशकारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Govinda Jaya Jaya Gopal Jaya Jaya, 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 Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya, Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya, Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Jaya Radha Giridhari Radha Giridhari Radhe, Jaya Radha Giridhari Radha Giridhari Radhe, Jaya Radha Gopinath Radha Gopinath Radhe, Jaya Radha Gopinath Radha Gopinath Radhe, Jaya Radha Ras Bihari Radha Ras Bihari Radhe, Jaya Radha Ras Bihari Radha Ras Bihari Radhe, Jaya Radha Madan Mohan Radha Madan Mohan Radhe, Jaya Radha Madan Mohan Radha Madan Mohan Radhe, Jaya Radha Baki Bihari Radha Baki Bihari Radhe, Jaya Radha Baki Bihari Radha Baki Bihari Radhe,
जय राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधे। जय राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधे। जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बोलो हरि नाम संकीर्तन की जय। शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर श्रीमानंदे हरि हरि बोल। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन व्रज जन रंजन। यशोदनंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन व्रज जन रंजन। यशोदनंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udirayu Nashtaprayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavate Seya Bhagavatim Uttama Shloke Bhakti Bhavati Nishti। आप सभी का स्वागत है भगवद गीता क्लास में। तो हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 6 ध्यान योग श्लोक संख्या 36। तो पहले हम श्लोका पढ़ेंगे अनुवाद के साथ, उसके बाद चर्चा करेंगे मंगलाचरण के साथ। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 6 ध्यान योग श्लोक संख्या 36। असंशयत आत्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो अवाप्तुम उपायतः।
जिसका मन उच्छृंखल है उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है, किंतु जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता ध्रुव है, ऐसा मेरा मत है। श्लोक संख्या 37। अर्जुन उवाच अयतिः श्रद्धयोपेतो योगाचलितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गतिं कृष्ण गच्छति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। श्लोक संख्या 38। कश्चिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि। हे महाबाहो कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं होता और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता। श्लोक संख्या 39। एतन्मे संशयं कृष्ण छेतुम अर्हसि अशेषतः त्वद् अन्यः संशयस्यास्य छेता नहि उपपद्यते। हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है और मैं आपसे इसे पूर्णतया दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सके। श्लोक संख्या 40। श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेह नामोत्र विनाशस्तस्य विद्यते नाहि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। भगवान ने कहा, हे पृथ्वापुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी का न तो इस लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। श्लोक संख्या 41। प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वतीः समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्ष तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या कि धनवानों के कुल में जन्म लेता है। श्लोक संख्या 42। अथवा योगिनामेव कुले भवति श्रीमतां धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यद ईदृशम्। अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। श्लोक संख्या 43। तत्र तं बुद्धि संयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते चाचय ततो भूयः समसिद्धो कुरु नंदन। हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नत करने का प्रयास करता है। श्लोक संख्या 44। पूर्वाभ्यासेन तेनैव क्रियते हि अवसो अपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दं ब्रह्माति वर्तते। अपने पूर्व जन्म को दैवी चेतना से वह न चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है। श्लोक संख्या 45। प्रयत्नाद यतमानस्तु योगी संशुद्धि किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धिस् ततो याति परां गतिम्। और जब योगी समस्त कल्मश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है
तो अंततो गत्वा अनेकानेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। श्लोक संख्या 46। तपस्वीभ्यो अधिको योगी ज्ञानीभ्यो अपि मतोऽधिकः कर्मीभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। अतः हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश। श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है भगवद गीता क्लास में। तो हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 6 ध्यान योग श्लोक संख्या 36 से हम चर्चा शुरू करेंगे। असंशयत आत्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो अवाप्तुम उपायतः। जिसका मन उच्छृंखल है उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है, किंतु जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता ध्रुव है, ऐसा मेरा मत है। भगवान यहाँ अर्जुन को बता रहे हैं कि हे अर्जुन, जिसका मन जो है संयमित नहीं होता, हमेशा यहाँ वहाँ भटकते रहता है, उसके लिए सफलता जो है बहुत ही मुश्किल कार्य है, बहुत ही कठिन है। तो अगर आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना है तो मन को संयमित करना होगा, अपने दिमाग को संयमित करना होगा, नहीं तो जो है आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि मन को संयमित करना
कितना महत्वपूर्ण आत्म साक्षात्कार। तो जो लोग योग करते हैं और अपने मन को संयमित नहीं करते, ये समझ लीजिए कि वो जो है सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, अपना समय व्यर्थ गंवा रहे हैं। वो क्या करते हैं, दिखाते हैं कि मैं योगा कर रहा हूं, लेकिन उनका मन जो है भौतिक चीजों में लगा रहता है। आज मुझे इतना रुपए की जरूरत है, कितना पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, ये इकट्ठा करना है, वो इकट्ठा करना है। तो मन जो है वो संयमित नहीं होता। तो योग का दिखावा करके कोई मतलब नहीं। तो ऐसा योगी जो है, हो सकता है भाई लोगों को भौतिक में देखने में बहुत ज्यादा लाभकारी लगे कि हाँ भाई ये देखो बहुत बड़े योगी हैं, और लेकिन ऐसे योगी का संगत करने से आप अपना जो है समय व्यर्थ गंवा रहे हैं, और आत्म साक्षात्कार तो बहुत दूर की बात है। तो यहां पर भगवान बता रहे हैं कि जो प्रभुपाद महाराज अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि जो ये कृष्ण भावनामृत का जो आंदोलन है, इससे जो है मन को निपटा जा सकता है। मन के ये जो उच्छृंखल भावना है ना, इसको निपटाया जा सकता है। और कृष्ण भावनामृत जो है ये एक तरह से प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है। और उसमें प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ये कैसा है कि इसमें जो है हम डायरेक्ट अपने मन को, अपने बॉडी लिम्स को, हमारे शरीर के अंगों को, हमारे आंखों को, हमारे नाकों को, हमारे कानों को, हमारे हाथों को, हमारे पैरों को, हर चीज को हम अपने भगवान के सेवा में साक्षात लगाए डायरेक्ट। और योगी क्या करता है, वो इनडायरेक्ट अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहे। लेकिन वो जो इनडायरेक्ट सेवा है, वो सेवा जो है भ्रष्ट होने का चांस रहता है उसमें। लेकिन जो डायरेक्ट सेवा होती है उसमें भ्रष्ट होने का चांस कम रहता है। कैसे? अगर आप गलत राह पे भी जाते हैं तो आपको बचाने के लिए बहुत सारे वहां पर आपके शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, भक्त सभी रहते हैं। आप वहां अकेले नहीं होते। योगी जो है अकेले तपस्या करता है, तो वहां पर पतन का चांस रहता है। लेकिन जो भक्त है वो भगवान के डायरेक्ट सेवा करता है, ग्रुप में रहता है, समूह में रहता है, भक्तों के साथ रहता है, गुरु के साथ रहता है, दीक्षा गुरु के साथ रहता है और भगवान की डायरेक्ट सेवा करता है, तो उसमें जो है मन एक आध बार गिरेगा तो वहां उठाने वाले बहुत लोग रहते हैं। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि जो है जो डायरेक्ट सेवा करता है भगवान की और जो इनडायरेक्ट सेवा करता है भगवान की, दोनों का फल एक ही है। ऐसा नहीं है कि जो योगी है उसे भगवत प्राप्ति होती है और जो डायरेक्ट कृष्ण भावना के आंदोलन में लगे हुए हैं उन्हें भगवत प्राप्ति नहीं होती, या फिर इसका उल्टा, जो डायरेक्ट भगवान की सेवा कर रहे हैं उनको भगवत प्राप्ति होती है और जो इनडायरेक्ट भगवान की सेवा कर रहे हैं उनको भगवत प्राप्ति नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों का फल एक ही है। तो लेकिन यही है कि प्रभुपाद बताते हैं कि जो है डायरेक्ट सेवा करना भगवान में, तो भगवत प्राप्ति के चांसेस 100% है। और जो योगा प्रैक्टिस करते हैं उसमें भाई कुछ कम हो सकता है, लेकिन प्राप्ति भी हो सकती है। तो उस दोनों का फल जो है योगा और भगवान की कृष्ण भावनामृत आंदोलन का जो उद्देश्य है एक ही है और दोनों में भगवत प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जो है बहुत बढ़िया उदाहरण देते हैं कि अगर जो लोग योगा कर रहे हैं और अपने मन को जो है भौतिक में लगाए हैं, इसका मतलब है कि आग जल रही है और आप उसमें पानी डाल के उसको और प्रज्वलित कर रहे हैं। तो आप योगा तो कर रहे हैं लेकिन भौतिकता को जोड़े हुए, भौतिकता को जोड़ने से क्या होता है, भौतिकता को जोड़ने से क्या होता है कि जो है आपका मन जो है भौतिकता में लगा रहता है और जैसे आग लगी रहती है, आप आग में पानी डालते हैं तो आग और प्रज्वलित होती है।
तो प्रभुपाद यहाँ जो है बहुत बढ़िया उदाहरण देते हैं। तो यहाँ पर जो है श्लोक संख्या 36 में भगवान बता रहे हैं कि अपने मन को संयमित करो, तभी जो है चाहे वो योगी हो चाहे वो डायरेक्ट भगवान की सेवा कर रहा है, भगवान की प्राप्ति हो सकती है। आगे जो है श्लोक संख्या 37 से 45 में अर्जुन को थोड़ा सा कुछ संशय है और उस संशय भरे क्वेश्चन वह भगवान के सामने प्रश्न जो है भगवान से पूछते हैं और भगवान जो है आगे आने वाले श्लोकों में उसका उत्तर देंगे। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि जो भगवान की जो क्या नाम है, जो योगी सफलता नहीं प्राप्त कर पाते उनका क्या परिणाम होता है, उनकी क्या गति होती है, उन्हें सफलता मिलती है, भौतिकता में सफलता मिलती है कि आध्यात्म में सफलता मिलती है। तो यहाँ पर भगवान बताते हैं कि जो ऐसा जो योगी होता है जो काफी समय तक योग में रहता है लेकिन कुछ कारणवश उसका पतन हो जाता है, तो उसको जो है अच्छे परिवार में जन्म मिलता है, ब्राह्मण परिवार में जन्म मिलता है। जैसे हमारे हरिदास ठाकुर, हमारे शिला प्रभुपाद और उनके गुरु सरस्वती ठाकुर, ये सब जो है अच्छे अच्छे परिवार में, उच्च परिवारों में जन्म लेके भगवान की सेवा को इन्होंने आगे बढ़ाया। तो यहाँ पर जो है भगवान जो है अर्जुन अब कुछ भगवान से प्रश्न कर रहे हैं, उनके जो संशय हैं कि भाई जो योगी होते हैं अगर उनका पतन हो गया तो उनकी क्या गति होती है। तो यहाँ पर जो है भगवान उसका प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं कि ऐसे योगी का जो है उन्हें जो है अच्छी गति प्राप्त होती है जहां से वे अपनी वापस से भगवत प्राप्ति का शुरुआत कर सकते हैं। श्लोक संख्या 37, श्लोक संख्या 37 से 39। 37 से 39 में भगवान बताते हैं कि अर्जुन जो है कुछ प्रश्न कर रहा है और भगवान उस प्रश्नों का उत्तर देंगे। श्लोक संख्या 37, 38 और 39। तो अर्जुन पूछ रहे हैं कि जिनका पतन हो जाता है उनकी क्या गति होती है, और श्लोक संख्या 37 में बोलते हैं कि जो है उसे क्या आध्यात्म की प्राप्ति होती है या मटेरियल की प्राप्ति होती है या दोनों नहीं होती है। तो यहाँ पर जो है अर्जुन जो पूछ रहे हैं कि भगवान जो है जब उसका उत्तर देते हैं तो कहते हैं कि जो है जैसे एक बड़ा बादल जा रहा हो और उसमें बड़ा बादल कैसे बनता है, छोटे छोटे बादलों से बनता है, और उसमें एक छोटे से बादल की इच्छा हो कि मैं ये बड़े वाले बादल को छोड़कर मैं जाके और बड़े बादल का ग्रुप ज्वाइन कर लूं। तो छोड़ना तो आसान है, लेकिन जब वो आकाश में निकलता है तो हो सकता है उसे बड़ा बादल मिले या नहीं मिले, लेकिन जब नहीं मिलेगा तो वापस आके वो जो है बड़ा बादल जो पहले ज्वाइन किया था वो नहीं ज्वाइन कर पाता। उसकी गति क्या होती है, वो घूम जाता है, तो भ्रष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर अर्जुन ऐसा प्रश्न पूछते हैं और भगवान जो है उसके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो भगवान बता रहे हैं कि अर्जुन बोल रहे हैं कि जो इस युग में ज्ञान मार्ग और अष्टांग मार्ग बहुत ही मुश्किल है। तो श्लोक संख्या 37। अर्जुन उवाच अयतिह श्रद्धयोपेतो योगाचलितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गतिम कृष्ण गच्छति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। तो अर्जुन जो है अभी उनके संशय अपना प्रश्न भगवान से पूछे कि जो योगी असफल रह जाता है उसका डेस्टिनेशन क्या है, उसकी गति क्या होती है। तो यहाँ पर भगवान अब जो है अर्जुन पहले
तो प्रश्न पूछ रहे हैं कि ये जो ज्ञान योग है और जो ये अष्ट सिद्धि है, अष्टांग योग, और ये जो भक्ति योग है, ये अलग अलग प्रकार के भगवत प्राप्ति के साधन हैं। तो अर्जुन पूछते हैं कि इन तीनों पथ में क्या समानता है, भगवान से प्रश्न पूछ रहे हैं। तो अर्जुन पूछ रहे हैं कि सबका उद्देश्य एक ही है कि अपने को भगवान का अंश समझना है और हमारा संबंध क्या है भगवान से, ये समझना है। और जो है, अगर हमारी समझ ऐसी होगी कि हम भगवान के अंश हैं और हम अपने भगवान के साथ संबंध को समझेंगे, तो हमें भगवत की प्राप्ति हो सकती है। कृष्ण भावनामृत के आंदोलन में हम सफल हो सकते हैं। तो ये तीनों जो हैं, ये जो है तीनों ये इंश्योर करते हैं, ये एक तरह से एश्योरेंस दिलाते हैं कि जो है अगर आप भक्ति करते हैं, अगर आप भगवान की के पथ धारण करते हैं, तो आपको उसमें सफलता मिलेगी ही। योगाचलित मानस। तो क्या होता है कि जब आप पथ पे चलते रहते हैं तो भटकने का भी चांस होता है। अभी ये जो तीनों पथ हैं, ये तीनों पथ में कौन सा स्ट्रांग है, ये प्रभुपाद यहाँ पर समझाने का कोशिश कर रहे हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि ये हमारी जो भक्ति है, हम जब भक्ति करते हैं, या जो हमारी ये कंडीशनल लाइफ है, ये जो हमारा कंडीशनल सोल है, ये जो आत्मा है, इसको आप जिस तरह से मार्गदर्शन करेंगे, जितनी आपके अंदर भक्ति होगी, जितना आपके मन को संयमित कर पाएंगे, उसी के हिसाब से आपको उसका फल मिलेगा। और अगर जैसे उदाहरण के लिए ले लीजिए, आप योगा कर रहे हैं, आप अष्ट सिद्धि कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, आपके अंदर कुछ भौतिक वासनाएं होती। तो अगर आप योगा कर रहे हैं और आपके अंदर भौतिक वासनाएं हैं, तो हो सकता है कि इन भौतिक वासनाओं की वजह से आपका पतन हो जाए। तो आप कितना अनुशासित हैं, और जब आप अनुशासित हैं तो कितने लोगों के साथ काम कर रहे हैं। जैसे डायरेक्ट सेवा में हम क्या करते हैं, बहुत सारे भक्तों के साथ काम करते हैं, तो अगर हमारा पतन भी होने का रहता है तो हम बच जाते हैं। लेकिन आप जब जंगल में जाके अष्टांग योग कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, जहाँ अकेले हैं, तो आपका मन कहीं और अगर लग गया, अगर आपने ठीक से योग सिद्धि नहीं की, तो उससे क्या होगा, आपका पतन हो जाएगा। तो अर्जुन पूछते हैं कि ये जो अलग अलग पथ हैं, इसमें से कौन सा पथ जो है ज्यादा मजबूत है। तो अर्जुन भगवान बताते हैं कि जो भक्ति योग है, ये जो भक्ति योग है, ये ज्यादा स्ट्रांग है। प्रभुपाद बताते हैं कि प्रभुपाद तो अपने तात्पर्य में कई बार लिखते हैं कि भक्ति योग सबसे बेहतर है। आप कोई भी प्रकार की तपस्या कर लो, तप कर लो, योग कर लो, अष्टांग योग कर लो, कोई भी सिद्धि की प्राप्ति कर लो, लेकिन भक्ति योग सबसे ज्यादा सफल है। तो यहाँ पर जो है ये बताया गया है, प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बताते हैं कि आपका जो आत्म साक्षात्कार है, उसका मूल सिद्धांत क्या है। मूल सिद्धांत प्रभुपाद कहते हैं कि जीव को यह समझना चाहिए कि मैं ये शरीर नहीं हूं, और वो जो है इस शरीर से अलग है, और उसका जो संबंध है वो है सत्य चित आनंद। हमारा जो चित है वो सत्य में होना चाहिए, तभी आनंद मिलेगा। भगवान जो है षड ऐश्वर्य के स्वामी हैं। षड ऐश्वर्य नाम का जो सागर है, महासागर है, वो भगवान के पास है। भगवान हमेशा देखिए हमेशा खुश रहते हैं। तो अगर आप भगवान की सेवा करेंगे, भगवान की प्रार्थना करेंगे, भगवान की तपस्या करेंगे, तो भगवान वो आनंद जो है आपके साथ शेयर करेंगे। तो सत्यचित आनंद के साथ में अगर आप रहते हैं तो आपको भी आनंद मिलता है, आपका चित्त भी सत्य हो जाता है, और जब आपका चित्त सत्य हो जाएगा तो आपको आनंद मिलेगा ही।
तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि ये जो है प्रभुपाद कहते हैं अपने तात्पर्य में कि ये जो जीवन है, ये जो है जीवन है हमारी समझ से परे है, और ये जो जीवन है ये शरीर और मन से बहुत अलग है। ये जो जीव है, ये जो आत्मा है, ये शरीर और मन से अलग है। मन को संयमित करना है और अपने आप को शरीर से अलग रखना है और भगवान की प्राप्ति करना है, सत्य चित्त आनंद से अपना संबंध जोड़ना है। अब हमको उससे हमें क्या होगा, हमें खुशी मिलेगी, हम भी आनंदित हो जाएंगे। श्लोक संख्या 38। कश्चिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहु विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि। हे महाबाहु कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं होता और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता। तो अर्जुन यहाँ पर जो है उदाहरण के साथ अपना प्रश्न कर रहे हैं कि भगवान, ये जो अनसक्सेसफुल योगी होता है, जो असफल योगी होता है, उसकी गति क्या है? प्रारंभ में बहुत लगन के साथ योग करता है, अष्टांग सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है, लेकिन किसी न किसी कारण वश वो असफल हो जाता है। उस असफलता की वजह से वो उसकी गति क्या होती है? तो अर्जुन कह रहे हैं, तो अर्जुन अपने प्रश्न को और सुचारू रूप से और क्लैरिटी के साथ पूछ रहे हैं और उदाहरण देके पूछ रहे हैं। कह रहे हैं कि अर्जुन श्लोक संख्या 37 में पूछते हैं कि योगी जो होता है प्रारंभ में बहुत ही शुद्ध मन के साथ योग शुरू करता है, लेकिन किसी कारणवश भौतिकता से वो जुड़ जाता है और उसका पतन हो जाता है। या फिर एक उदाहरण ले लीजिए, अर्जुन कहते हैं कि तो प्रभुपाद जो है उदाहरण देते हैं कि अगर एक बड़ा बादल जा रहा हो, और एक बड़ा बादल बनते कैसे है? छोटे छोटे बादलों से। तो उसमें से एक छोटे बादल के मन में ये आ जाए कि मैं ये बादल को छोड़ के जाके और बड़ा बादल ज्वाइन कर लेता हूँ और बड़े बादल से जुड़ जाता हूँ, और जैसे ही वो छोड़ता है जाके दूसरे बादल की तलाश में कि और इससे बड़ा बादल में ज्वाइन कर लूं, वो क्या होता है? आकाश में खो जाता है। तो एक तरह से उसका पतन हो जाता है। तो ये वही अर्जुन कह रहे हैं कि पहले तो वो बहुत अच्छी शुरुआत करता है योगी और अष्टांग योग की सिद्धि, लेकिन बाद में उसका पतन हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो है भगवान को छोड़ देता है, भगवान को छोड़ के भौतिकता में लग जाता है, और बड़ा चाहिए और बड़ा चाहिए। तो प्रभुपाद बताते हैं अपने तात्पर्य में कि जो है जीवन में दो तरह से हम लोग उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। एक होता है हम लोग भौतिकता में उन्नति कर लें, और दूसरा होता है हम लोग आध्यात्मिक में उन्नति कर लें। तो जो भौतिकता में उन्नति करना चाहते हैं उनका आध्यात्म से कोई लेना देना नहीं होता है, या थोड़ा बहुत नामचीन के लिए रखते हैं। और वो क्या करते हैं? भौतिकता में लग जाते हैं, चलो ये करेंगे। तो वेदों वगैरह को थोड़ा बहुत पढ़ के जो जो अपने अपने फायदे के लिए है वो जो है करते हैं। भाई जैसे कोई देवताओं की उपासना करे सुंदर पति पाने के लिए, सुंदर पत्नी पाने के लिए, भौतिकता में जुड़े हुए हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं लेकिन भौतिकता में जुड़े। मुझे सुंदर पत्नी चाहिए, मुझे को जो है सुंदर पति चाहिए, और सुंदर पति और पत्नी मिल जाने के बाद उनका जो है स्वार्थ पूरा हो जाता है, फिर तो भौतिकता में लग जाते हैं। और जो आध्यात्म में लगे रहते हैं वो किसी भी प्रकार का कोई जो है यज्ञ नहीं करते। तो क्या करते? नाम, जैसे नाम युग है, भगवान का नाम लेते हैं और किसी प्रकार की भौतिक सुख में आनंद नहीं लेते हो। तो यहां पर जो है बता रहे हैं भगवान कि अर्जुन जो है बता रहे हैं कि छिन्ना भ्रम इव नश्यति। तो वो क्या होता है कि बड़े बादल से वो कनेक्शन लेस हो जाता है, अपना संबंध छोड़ देता है। तो उससे क्या होता है?
वो और बड़े बादल को ज्वाइन करने के लिए सोचता है। मतलब उसे और आनंद चाहिए, वो पहले से आनंदित है लेकिन उसे और आनंद चाहिए। भौतिकता लग गई तो उससे क्या हो रहा है, वो और आनंद पाने के चक्कर में वो भौतिकता में खो जाता है। भौतिक बहुत बड़ा संसार है, ओशन है, ये समुद्र है। भौतिकता एक तरह से आगार है। कितना सुख पालो, कितना आनंद पालो, कितना पैसा पालो, कितना कमा लो, कोई सीमा नहीं है। और वो उसी सागर में डुबकी लगाते रहता है और उसका मन जो है भरता नहीं है। तो यहां पर अर्जुन पूछ रहे हैं कि ब्रह्मणः पति, तो कैसे जो है आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति होगी। जब तक आप अपने आप को भगवान का अंश नहीं समझेंगे, आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति नहीं होगी। तो आप भौतिकता में लगे रहेंगे और ब्रह्मन परमात्मा भगवान तीनों प्रकार के दर्शन आपसे दुर्लभ है। और जो अनसक्सेसफुल योगी हैं, जो असफल योगी हैं, वो क्या करते हैं, जो सफल योगी हैं वो क्या करते हैं, अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं। लेकिन जो अनसक्सेसफुल योगी हैं, भगवान के चरणों में समर्पित किए थे लेकिन भौतिकता से जुड़ने की वजह से फिर वो जो है उनका संग जो है टूट जाता है। और जो भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, जो सफल योगी हैं, उन्हें ब्रह्मन परमात्मा और भगवान का साक्षात्कार धीरे धीरे हो जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि भक्ति योग जो है एक तरह से डायरेक्ट पथ है और इस पथ पे चलने से भगवत प्राप्ति होने की 100% गारंटी रहती है। श्लोक संख्या 39। एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुम् अर्हसि अशेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेता न हि उपपद्यते। हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है और मैं आपसे इसे पूर्णतया दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सके। अर्जुन पूछते हैं कि हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है कि जो है असफल योगी की गति क्या है। उसका अध्यात्म मिलता है, उसको अध्यात्म तो मिलता नहीं, भौतिक मिलता है या दोनों नहीं मिलता है। तो अर्जुन को मालूम है कि ये जो मेरा संशय है ना, ये भगवान ही इसका निवारण कर सकते हैं और कोई भौतिक में इसके लिए योग्य नहीं है। तो यहां पर प्रभुपाद कहते हैं, अपने तात्पर्य में बताते हैं कि क्यों कृष्णा ही क्यों ये संशय दूर कर सकते हैं। क्योंकि अर्जुन जो है खाली यही जीवन का याद रख सकता है, लेकिन भगवान जो है पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल तीनों को जानने वाले हैं, तीनों के ज्ञाता हैं। और दूसरी बात, भगवान के ऊपर कोई नहीं है और न भगवान के कोई सम है। हम सभी भगवान के नीचे हैं, हम सभी भगवान के अंश हैं। तो हमारा जो उद्देश्य होना चाहिए भगवत सेवा की होनी चाहिए। और यहां पर जो है प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान जो है भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के ज्ञाता है और ना भगवान से कोई बड़ा है ना कोई भगवान के बराबर है। इसलिए भगवान ही अर्जुन के संशय को दूर कर सकते हैं। अब ये कौन से आधार पे अर्जुन ऐसा कहते हैं कि भगवान ही मेरी शंका दूर कर सकते हैं? क्योंकि भगवान जो बोलते हैं वो हमारी समझ से परे होता है। वो एक जीव जो है जल्दी समझ नहीं सकता जब तक उसे दिव्य दृष्टि ना मिले। भगवान ने अपना विराट रूप दिखाने से पहले अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी, तो उस दृष्टि से वो देख सका।
और भगवान जो कहते हैं वो हमारी समझ से परे होता है, हम समझ नहीं सकते जल्दी। और इससे पता चलता है कि भगवान जो है भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल तीनों के ज्ञाता है। इसीलिए अर्जुन उनसे प्रश्न करता है कि हे भगवान, उनसे विनती करता है कि आप ही मेरे इस संशय को दूर कर सकते हैं और आप ही करिए। तो भगवान, जैसे भगवान तीनों के ज्ञाता हैं और भगवान जो है षड ऐश्वर्य के स्वामी हैं, उसी तरह जो भगवान के भक्त होते हैं, जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन से जुड़े हुए हैं, उन्हें भी जो है वो भी आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं, क्योंकि वो भगवान से जुड़े हुए हैं। तो वो जो भी बोलेंगे भगवान उनके मुख से बोलेंगे। तो भगवान के जो भक्त होते हैं भगवान के बारे में जानते हैं, इसलिए भगवान से जुड़े जो सवाल हैं, जो प्रश्न है, उसका उत्तर वो दे सकते हैं। इसलिए अर्जुन को लगता है कि ये जो मेरे जो सवाल हैं, इसके उत्तर, इस जो प्रश्न है, इसका उत्तर सिर्फ भगवान ही दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता, क्योंकि भगवान जो है वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल तीनों के ज्ञाता हैं। और भगवान से ना कोई बड़ा है और ना कोई भगवान के बराबर है। अऊर्ध्वसम, अऊर्ध्वसम मीन्स उनसे बड़ा भी कोई नहीं है और उनके बराबर भी कोई नहीं है। यह है श्लोक संख्या 39। और भगवान जो है श्लोक संख्या 40 से 45 में अब ये अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर धीरे धीरे देंगे। तो भगवान पर श्लोक संख्या 40 में बताते हैं कि ये जो भगवत भक्ति में लगे रहते हैं ना, ये इनका जो गिरने का, पतन होने का चांस बहुत ही कम रहता है, क्योंकि वो डायरेक्ट भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। उन्हें जो है वो अध्यात्म में होते हैं, वो भौतिक में नहीं होते। और श्लोक संख्या 41 में भगवान बताते हैं कि ऐसे ये जो योगी होते हैं अगर असफल हो गए तो उनका क्या होगा, वो जो है स्वर्ग लोक जाएंगे, उनको स्वर्ग लोक में जाने का मिलेगा और वो हजारों साल तक वहां पर ऐशो आराम करेंगे, वहां का जीवन जिएंगे। सोमरस मिलता है वहां पर और सारे सुख मिलते हैं वहां पर। एक से अप्सराएं होती हैं, सुंदर स्त्रियां होती हैं, गंधर्व होते हैं, नाच गाना होता है, तो सारे सुख उन्हें मिलते हैं वहां पर। क्यों? क्योंकि जब वो योग कर रहे थे तो भौतिकता से जुड़ गए, इसलिए वो क्या हुआ, उन्हें वही चीज उनको स्वर्ग लोक में मिली, वहां जो जिसका आनंद ज्यादा मिलता है। तो ऐसे हम देखा जाए तो हम जो इच्छा करते हैं भगवान वो इच्छा पूरी करते हैं। तो ऐसे योगी होता है, योग करते रहता है, लेकिन उसका भौतिकता में भटक जाता है, तो भगवान उसको ऐसी जगह भेज देते हैं कि जा भाई तू वहां पर खूब सुख भोग ले, उसके बाद में तपस्या करना। तो जब वो हजारों साल स्वर्गलोक में भोग कर लेता है, उसके बाद में जब उसका समय पूरा हो जाता है तो वापस वो भौतिकता में फेंक दिया जाता है। वापस वो भौतिकता में किसी अच्छे घर में जन्म लिएगा, मृत्यु लोक में वापस किसी ब्राह्मण घर में, किसी वैष्णव घर में, जैसे उसने कर्म किया हो, जितना उसने योगा किया हो, जितना उसने सफलता हासिल की हो, तो उसकी सफलता जो है खत्म नहीं होती है, उसकी सफलता अगले जन्म में फिर वहीं से शुरू हो जाती है। तो अगर उसने बहुत अच्छी तपस्या की है तो उसे वैष्णव के घर में जन्म मिलेगा, जैसे हमारे श्रील प्रभुपाद वैष्णव के घर में जन्म मिला। हरिदास ठाकुर, नामाचार्य हरिदास ठाकुर, वैष्णव के घर में जन्म नहीं मिला, जन्म ना भी पाकर, लेकिन उन्होंने भगवत भक्ति प्राप्त की। तो इस तरह से श्लोक संख्या 41 में भगवान बता रहे हैं। श्लोक संख्या 42 में भगवान और आगे बताते हैं कि वो जो योगी होता है वो एक अच्छे घर में, किसी आचार्य के घर में, वैष्णव के घर में जन्म लेता है। श्लोक संख्या 43 और 44 में भगवान बताते हैं कि उसने जहां से पुण्य करना छोड़ा था उसका पुण्य वहीं से शुरू होता है। जैसे एक बैट्समैन हो,
अगर 99 पे आउट हो जाए तो 99 ही माना जाएगा, 100 नहीं गिना जाएगा। लेकिन भक्ति योग में क्या होता है, अगर वो 99 पे आउट हो गया तो अगले जन्म में उसका जो स्कोर होगा उस 99 के आगे चालू होगा। बैट्समैन एक बार आउट हो गया 99 पे, तो अगली बार खेलेगा तो फिर 1 से ही शुरू होगा उसका बैटिंग जब भी आएगा। लेकिन भक्ति योग में क्या होता है, अगर आप 99 पे आउट हुए, असफल रह गए, तो अगले जन्म में जब आपको भक्ति करने का मौका मिलेगा तो 99 के आगे उसमें शुरू होगा, ना कि 1 से शुरू होगा। तो ये है भक्ति का महत्व। तो भक्ति का कोई बेजोड़ नहीं है, भक्ति जो है बेजोड़ है। तो भगवान बता रहे हैं कि अच्छे घर में, अच्छे परिवार में जन्म मिलने के बाद जो है वो अपना योग, अपना भक्ति जो है आगे बढ़ा सकते हैं। और वो भक्त जो योग करके असफल हो गया था, उसे जो है अगले जन्म में अच्छे घर में जन्म मिलके वहां से उसकी भक्ति शुरू होती है। तो उसकी भक्ति जो पहले जन्म में की थी वो खत्म नहीं हुई थी। इस तरह से श्लोक संख्या 44 में बताते हैं। फिर भगवान श्लोक संख्या 45 में कहते हैं कि इस तरह से भक्ति करते हुए वो जो है भगवत प्राप्ति करता है। और ऐसे कई जन्मों में वो जो है अपना अनुशासित जीवन जीते हुए और योग करते हुए, भक्ति करते हुए और उसने धीरे धीरे अपने सारे पापों को धो डालता है और भगवत प्राप्ति कर लेता है। तो हमें इसके लिए जो है अच्छी संगत करनी चाहिए। अच्छी संगत करने से क्या होगा, आपको भक्ति हमेशा याद रहेगी, आप भक्ति कभी भूल नहीं पाएंगे। श्लोक संख्या 40 भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृतस्य दुर्गतिं तात गच्छति। भगवान ने कहा, हे प्रथापुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी का न तो इस लोक में न परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। तो एक जो योगी होता है, जो भक्त होता है, जिसका पतन हो गया रहता है किसी न किसी कारणवश, वो बहुत स्ट्रांग होता है। उसने भक्ति की थी ना, उससे वो जो उसको शक्ति मिली थी वो कभी क्षीण नहीं होती। हो सकता है किसी न किसी कारणवश उसका पतन हो गया। तो श्रीमद् भागवतम के स्कंद 1 में अध्याय 5 के श्लोक संख्या 17 में नारद मुनि व्यास देव जी कहते हैं, त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर्भजन अपकोथ पते ततो यदि यत्र क्वा वा भूद्रम अभूद अमुष्य किम को वार्थ आप्तो अभजताम स्वधर्मतः। यदि कोई समस्त भौतिक आशाओं को त्याग कर भगवान की शरण में जाता है तो इसमें ना तो कोई क्षति होती है और ना पतन। दूसरी ओर अभक्त जन अपने अपने व्यवसाय में लगे रह सकते हैं और फिर भी वे कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। भौतिक लाभ के लिए अनेक शास्त्रीय तथा लौकिक कार्य हैं। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि नारद मुनि ने व्यास जी को जो है उपदेश दिया। क्या कहा कि आप भले पाप किए हों, लेकिन आप भगवान की शरण में जाते हैं तो आपका पतन नहीं होता, आपको उस पाप से उबरने का मौका दिया जाता है। थोड़ी बहुत तकलीफ होगी, लेकिन वो तकलीफ जो है आपको ब्रह्म प्राप्ति करवाएगी। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि जो अच्छे कार्यों में लगा हुआ है, जो भक्त अच्छे कार्यों में लगा हुआ है, जो लोग अच्छे कार्यों में लगे हुए हैं, भक्ति कर रहे हैं, कल्याण का काम कर रहे हैं, उनका कभी पतन नहीं होता है। तो जैसे हमने देखा श्रीमद् भागवतम का श्लोक, तो यहाँ पर एक जो योगी होता है, एक जो भक्त होता है, उससे क्या आशा की जाती है?
उससे ये आशा की जाती है कि वो अपने पापों को धीरे धीरे खत्म करे, निकाल के फेंके और आध्यात्मिक कार्यों से जुड़े। उसने जो पाप किए हैं उसका रिएक्शन तो आएगा ही, उसकी प्रतिक्रिया तो मिलेगी, लेकिन भगवान उसको सहने की शक्ति दे देगा। ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारा पाप करके भक्ति में लगे तो आपका सब माफ हो जाएगा। एक तरह से देखा जाए तो माफी हो जाएगा, लेकिन वो आपको सजा उसकी मिलेगी और आपको उसको सहने की शक्ति भी उतनी ही मिलेगी। जितनी तीव्रता से आप भक्ति करेंगे उतनी ही तीव्रता से आपको उस पाप के फल को सहने की शक्ति मिलेगी और वो आप एलिमिनेट करने के इसमें आप निकल जाएंगे। तो यहां पर ये बता रहे भगवान, और भगवान बताते हैं कि कोई नुकसान नहीं है। वो जो है उसका जो पिछले जन्म में जो उसने पुण्य किए थे उस पुण्य से ही उसकी शुरुआत होती है, आगे जो भी पुण्य करेगा उसमें ऐड हो जाएगा। तो यहां पर भगवान बताते हैं कि ये जो प्रभुपाद लिखते हैं अपने तात्पर्य में कि जैसे आप भौतिकता में लगे हुए हैं तो आप अपने कुछ फायदे के लिए वेदों को फॉलो करते हैं। हाँ, ये यज्ञ करो, ये सैक्रिफाइस करो तो सुंदर स्त्री मिलेगी, सुंदर पति मिलेगा, धन की प्राप्ति होगी। तो ये सब भौतिक है, इसका कोई अंत नहीं है। तो ये जो भौतिकता में सफलता है आप बिना कृष्ण भावनामृत आंदोलन के नहीं पा सकते और आपका पतन हो जाएगा। तो भगवान बताते हैं कि जो है अगर आप जो है भगवान में विश्वास रखेंगे, भक्तों में विश्वास रखेंगे तो आपका क्या होगा, आप जो है अच्छी संगति में रहेंगे और आपको ददामि बुद्धि योगतम, भगवान आपके लिए व्यवस्था कर देंगे पूरी कि जहां जाने से आपका पतन होगा ही नहीं। ददामि बुद्धि योगम तम, ऐसी बुद्धि देंगे कि आप कल्याण वाला ही काम करोगे जिससे आपका पतन नहीं होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो प्रभुपाद आगे लिखते हैं कि कल्याण का काम करने वालों का कभी नाश नहीं होता, अच्छाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता, थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ सकता है। तो प्रभुपाद बताते हैं अपने तात्पर्य में कि जो है ये जो मनुष्य है ना, ये अपने इनका जीवन जो है दो प्रकार का होता है, एक होता है संयमित, एक होता है असंयमित। जो असंयमित होते हैं वो खाली अपने इंद्रियों की तृप्ति के पीछे भागते रहते हैं, तो उससे क्या होगा, उन्हें कभी सुख नहीं मिलेगा, उन्हें कभी शांति नहीं मिलेगी और वह हमेशा भौतिकता में फंसे रहेंगे। वो बहुत सारी डिग्रियां ले लिए होंगे, बहुत बड़े बीटेक होंगे, बहुत बड़े पीएचडी होंगे, लेकिन भौतिक डिग्रियां लेने से अध्यात्म में सफलता मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। ऐसा कभी सोचना ही नहीं चाहिए। और जिनका जीवन संयमित होता है वो तीन प्रकार के होते हैं और वो जो है साहित्य को फॉलो करते हैं और उनके जो कार्य होते हैं, उनको जो कृत्य होते हैं वो सुख देने वाले होते हैं और वो धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत के आंदोलन में सफल होते हैं। तो तीन प्रकार के जो संयमित लोग होते हैं वो जो है कर्मी, ज्ञानी और भक्त। भक्त मतलब जो भक्त हैं, डिवोटी हैं, वो भक्त हैं, और जो ज्ञानी है वो ज्ञानी जो है उनकी इच्छा होती है कि इस भौतिकता से कैसे हम दूर हट जाएं। और जो कर्मी होते हैं वो क्या करते हैं, वेद पुराणों को फॉलो करते हैं और अपने फायदे के लिए कि हम मुझे फायदा कहां से होगा, मुझे फायदा कहां से होगा, मुझे भौतिक सुख कहां से मिलेगा और मेरी इंद्रियां कहां से तृप्त होंगी, ये है कर्मी के। लेकिन जो भक्त होते हैं वो भगवान के लिए कार्य करते हैं, भगवान के इंद्रियों के सुख के लिए कार्य करते हैं, भगवान की इच्छा अनुसार कार्य करते हैं। वो अपनी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करते,
वो अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा के साथ जोड़ देते हैं। मेरा जीवन जो है भगवान के लिए है, भगवान जैसा मेरे लिए जो प्लान किए है मैं वही करूँगा। तो और वो अच्छे कार्य करते हैं और उन्हें अंत में मुक्ति मिलती है, भगवत प्राप्ति होती है। मुक्ति से भी आगे होते, जो भक्त होते हैं वो मुक्ति से भी आगे होते, उन्हें भगवान की सेवा करने का मौका मिलता है। और जो अष्टांग योगी होते हैं वो अष्टांग योगी जो होते हैं आगे धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत आंदोलन से जुड़ने से वो क्या होते हैं, जो पिछले जन्म में अष्टांग योगी रहे होंगे इस जन्म में उनको कृष्ण भावनामृत आंदोलन से जुड़ने का मौका मिलता है और वे सुख पूर्वक जुड़े होते हैं, भक्तों की सेवा करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं और वो जो है सफलता प्राप्त करते हैं। इस तरह से यहाँ पर प्रभुपाद लिखते हैं अपने तात्पर्य में कि जो लोग संयमित होते हैं उन्हें सफलता मिलती है, वो जो लोग कल्याण का कार्य करते हैं उन्हें सफलता मिलती है, जो लोग अच्छाई करते हैं वो कभी बुराई से पराजित नहीं होती है। इस तरह से हम अपनी वाणी को यहाँ विराम देंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।